एक बार लाइफ में केरला एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए. If you wondered why this dream-like destination is called God's own country, there is a charm in places like Athirapalli, Munnar, Alappuzha, Varkala and Kovalam. इस वीडियो में मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करूंगी as to how we planned and executed our trip to Kerala with two little kids. सो गाइस, दुबई से दिल्ली आने के बाद और दिल्ली से अब हम निकल चुके हैं प्लेन में बैठ के कोचिन एयरपोर्ट की तरफ. हमने ये ट्रिप प्लान किया था जनवरी में, जहाँ दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और आई एम श्योर कोचिन में बिल्कुल भी ठंड नहीं होने वाली है. सो लेट्स गेट गोइंग. दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं गॉड जोन कंट्री केरला में. काफ़ी टाइम से ये हमारी वेटिंग लिस्ट में था और हमने इस इंडिया ट्रिप में डेफिनेटली प्लान करना था. तो हम अभी लैंड करेंगे कोची एयरपोर्ट में और हम जाने वाले हैं एलपी, जो कि यहाँ से 1.5 आवर्स की दूरी है. दिल्ली से कोची की फ्लाइट बहुत स्मूथ रही. इट टुक अस अराउंड 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स टू रीच एयर. अभी जाके आपको केरला का नज़ारा भी दिखाते हैं. अब हम निकल चुके हैं आलपी की तरफ और केरला के इस पूरे के पूरे ट्रिप के लिए मैंने एक कैब बुक करी है जो कि मुझे पड़ी है 15,000 रुपीज़, which was quite reasonable. दोस्तों, I will put the number of the taxi driver so you can also have a look at it. Now let's go straight to Alleppey. Alleppey, also known as Alappuzha, is a beautiful town of Kerala. Famous for its peaceful backwaters, it's like a mini Venice with lots of canals and small boats. You can take a ride on a traditional houseboat or a shikara and enjoy the calm waters surrounded by greenery and coconut trees. We planned this trip in January when it was really cold in Delhi and we wanted to escape that freezing cold and enjoy the pleasant climate of Kerala. So we booked our flights and boarded the flight and landed in Kochi. There was a car waiting for us to take us on our trip. On our way to Alleppey from Kochi, everyone got tired and took a nap as it was almost a 3 hour ride. It was a complete surprise as I planned this trip by myself and no one knew where we were heading and where we were going to stay. So, as soon as they reached the resort, they were all surprised by the beautiful resort. On arrival, we were offered a very refreshing welcome drink, which made us all active again, and we were all ready to explore the beautiful resort. Guys, if you have liked my video till now, please give it a like and do subscribe to my channel as it will help the YouTube algorithm to share it with others as well. It would only take 2 seconds, but trust me, it will help this channel a lot. Okay, now let's get further. So, this resort is located on the shores of the Vembanad Lake, which is said to be the largest lake in Kerala. They have lavish and splendid rooms, and we were offered the lake view premium rooms. Since it was our anniversary, they did the beautiful floral and tile decoration for us, which was such a sweet gesture from their side. So this is the view, morning view of from our room. Look how beautiful it is. That's the backwater you can see from here. और यहाँ पे मस्त हाउस बोट्स, शिकारा सब यहीं पे चलती है. After relaxing a bit, we went to explore the resort and found that this resort not only have some indoor activities like carom board and chess, but they also offer cycling and fishing, which is also included in the package.
sir? You want to do cycling? This resort is also home to many birds and animals like ducks, peacocks, and rabbits, and is quite a nature friendly place. You get to hear the songs of many beautiful and migratory birds. This resort is one of the best resorts. Even my kids were able to enjoy a lot watching ducks and running around peacocks. So later that day, we decided to take a shikara ride as we were not able to stay in the houseboat. आलती आएंगे तो आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप हाउस बोट ले सकते हैं या फिर आप रिजॉर्ट में रह सकते हैं और या फिर आप रिजॉर्ट में रह के शिकारा का फुल मजा ले सकते हैं। हाउस बोट में हमने इसलिए नहीं प्लान करा क्योंकि हाउस बोट 6 o'clock के बाद 5 o'clock पार्क हो जाती है, उसके बाद हाउस बोट वहीं स्टे करती है, तो इट इज जस्ट अ रूम फॉर यू। और बच्चों के साथ वी थॉट कि ये लोग तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने रिजॉर्ट बुक करा और 2 घंटे का शिकारा राइड। दोस्तों यहाँ पे भी आपने देखा नारियल पानी, और जितना भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे नारियल पानी का प्राइस है 50 रुपीज पर नारियल पानी, बट ट्रस्ट मी गाइस इट इज सो स्वीट और यहाँ का बिल्कुल ऑथेंटिक, बहुत मजा आया। The next morning, we had a breakfast in the resort and checked out for our next location. Breakfast time. तो दोस्तों हैरिटी के बैक वाटर से निकल के अब हम आगे चल पड़े हैं मुन्नार के हिल्स पे। ये यहाँ से अराउंड 4 hours या फिर 163 किलोमीटर दूर है। हैरिटी से मुन्नार के रास्ते में काफी चीजें आती है, जैसे कि वाटरफॉल है, स्पाइस गार्डन है, टी प्लांटेशन है, तो वो भी अब आपको हम आगे दिखाते हैं। Oh my God! इट्स अ वेरी स्मॉल वन। बिग वाटरफॉल है, बारिश नहीं है। अच्छा अच्छा गाइस, चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का वाटरफॉल। ये है रेयांश जो कि बैठे बैठे ले रहे हैं मजे वाटरफॉल के। दोस्तों ये देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल, जो कि अभी आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, बट ट्रस्ट में जब यहाँ पे रेन्स होती हैं तो ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये पूरा यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा फुल होता है। बट अभी क्योंकि रेन्स का टाइम नहीं है, अभी जनवरी चल रहा है, तो यहाँ पे वाटरफॉल ऐसा छोटा सा ही दिख रहा है। और यहाँ से 2 किलोमीटर हमें एक और वाटरफॉल दिखेगा जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही शानदार बेहतरीन वाटरफॉल जो कि रास्ते में पड़ता है मुन्नार के। ये वाटरफॉल आप यहाँ पे ऑफकोर्स बेट नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं, बट ये व्यू ही इतना बढ़िया है कि सारी थकान मिट जाती है। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है स्पाइस गार्डन एंड चॉकलेट फैक्ट्री, सो लेट्स गेट गोइंग। गाइस 5-10 मिनट्स के बाद अब हम पहुंच गए हैं स्पाइस गार्डन, और इसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपको गाइड मिलती हैं जो कि आपको पूरे के पूरे प्लांट्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में
बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती हैं। So, दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया स्पाइस गार्डन। ये वहाँ की शॉप है। अगर आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है, आप कुछ भी स्पाइसेस खरीदना चाहते हैं या वो लीफ से बनी हुई मेडिसिन, हेयर ऑयल, आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। वैसे तो हम थोड़ा रुक रुक के भी जा रहे हैं ना अम्मा। गाइस सुबह से चलते चलते अब रात हो गई है और अभी तक हम लोग मुन्नार में हमारा जो होटल था अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे। सो डू नॉट रिलाई ऑन गूगल मैप्स as there are so many beautiful spots and you are definitely going to stop by to explore those like we did. So always take 1 or 2 hours in your hand when you are coming to Kerala. After driving for almost 8 hours, we have finally reached our resort. Ragamia Resort in Munnar is a peaceful place on top of the mountain where you can actually see and feel the clouds around you. From here, you can enjoy beautiful views of greenery and even a river flowing below. The stay costs around 9,000 rupees for one night with breakfast included. In winter nights, they also arrange a cozy bonfire which makes the experience extra special. They also have fun activities like snooker, table tennis, cycling and outdoor swings for kids. Plus an amazing infinity pool with stunning valley views. Munnar tourist points are about 30 to 35 kilometers away, taking around 1 to 1.5 hours by car. We stayed here for 2 nights, enjoyed dinner with a cozy bonfire at night, and the next day after breakfast, we left to explore Munnar. हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगी टी गार्डन। इतना प्यारा व्यू और इतनी अच्छी ग्रीनरी, हम आपको ये सब चीज़ें कभी भी दुबई में नहीं दिखा पाएंगे। ये सिर्फ आपको यहाँ गॉड्स ओन सिटी केरला यही मिलने वाला है। ये देखिए है ना, एकदम ब्यूटीफुल। इवन रोड्स आर सो क्लीन गाइस, सी। और दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि ये जो पूरा केरला का ट्रिप है ये हमने किसी भी ट्रैवल एंड टूरिज्म वालों के साथ में नहीं बनाया है और ये हमको काफ़ी नॉमिनल प्राइस भी पड़ा है, क्योंकि अगर आप किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म वालों के साथ में पैकेज बनवाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव देते हैं, राइट। सो ये हमें काफ़ी नॉमिनल पड़ गया है, जबकि हम पूरा फैमिली के साथ आए हैं। मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे बच्चे और अंकित और मैं। तो आप आगे वीडियो में आप देखते रहिए, बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें टैक्सी हमने कैसे बुक करी, जो कि हमारे साथ पूरे 4 डेज के लिए है। On the way, we visited the tea museum where the entry fee is around 125 rupees per person and you can learn about how tea is made and you can also try the different flavors of tea. ट्राई करते हैं। Actually this is खट्टा मीठा and it's very very yummy. बट दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसे कोई भी लीफ या कुछ लेके मत खाइएगा, वो डेंजरस भी हो सकता है। मम्मा को थोड़ा नॉलेज है बिकॉज वो मसूरी में रहे हैं और उनको पहाड़ पे और कौन से पौधे उगते हैं उन सब के बारे में पूरी नॉलेज है, तो आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, पर आप लोगों को अगर पता है तो ट्राई करो, नहीं पता है तो डोंट ट्राई। आई कैन हैव इट अगेन। पापा वुड लाइक टू ट्राई खट्टा मीठा, सच में बहुत अच्छा है। पापा डजंट वांट टू ट्राई। चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं टी म्यूजियम में तो जस्ट उसके पीछे ही ये है कमाल शो। कौन सा अभी देख रहे हैं ये कैसे हो गया है।
actually from Delhi, but settled in Dubai. वो दुबई स्मॉल रिक्वेस्ट मैडम हाँ दुबई है ना ये कंट्री स्मॉल करें ये हाँ कनाडा अमेरिका मलेशिया हाँ. You like to collect it? हाँ ये साल Okay, okay. I will give you. Thank you so much, भैया. तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट पार्क में. पावर टिक्की हाँ जी. Sorry. Riyansh, how did you like it? Did you like the elephant ride? Look here. ऊपर नीचे जा रहा था. रियांश आपको मजा आया? Did you enjoy? Yes. Yes. No elephants. No, there are how many? 4 elephants. 4 elephants. Come, let's go. Bye-bye to elephants. Okay, bye-bye to elephants. कैसी है ये वाली मैगी? अच्छी है. Sweet. We ended our day at Echo Point, where the mountains repeat your voice and the view is just amazing. बहुत धीरे है. Mama!